We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। It's a program that emphasizes that connection with God helps a person to be happy and live a better life in this world. ये प्रोग्राम इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर के साथ में संपर्क रखने से हम इस संसार में खुश जीवन जी सकते हैं और इस संसार में हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। Because the very way God created man is so that he may have relationship with him. क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य परमेश्वर के साथ में संबंध रख सके। Because he created man in his own image. क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। With the expectation that he will relate with him, he will live with him and he will have a grand fellowship with him. इसी अपेक्षा के साथ में बनाया है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ में जुड़े रहेंगे, मनुष्य के साथ में रहेंगे और निश्चय ही मनुष्य से अच्छी संगति रखेंगे। And today I want to share something in connection with that. आज मैं आपको इसी के संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ That is walking with God. कि परमेश्वर के साथ में चलना। Can I walk with God? क्या मैं परमेश्वर के साथ चल सकता हूँ? I am sure you have walked with some people in this world. मैं जानता हूँ संसार में आप लोगों के साथ चले हैं। Well, you may walk with your partner, life partner. और आप अपने जीवन साथी के यानी पति या पत्नी के साथ चले हैं। You may have walked with your children. अपने बच्चों के साथ में आप चले हैं। You may walk with your grandchildren. अपने नाती पोतियों के साथ चले हैं। Those are wonderful experiences. ये तो बहुत ही अच्छे अनुभव होते हैं। But here today I want to talk about walking with God. आज मैं परमेश्वर के साथ चलने के बारे में बताना चाहता हूँ। And Bible talks about that. बाइबल इसके बारे में बताती है। Because when you read the book of Genesis, after God created mankind, Bible gives a lot of names whom God created and how they ended their life, or how their fate ended. उत्पत्ति में बताया कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और वहां पर उन लोगों के नाम बताए गए हैं और उनका जीवन कैसे खत्म हुआ इसके बारे में भी बाइबल में बताया गया है। In the book of Genesis we read a lot of names. उत्पत्ति की किताब में हम बहुत से नाम पढ़ते हैं। And this one lived for so many years and then he died and then he died and then he died, like it continues on. जैसे कि ये बताती है कि ये इतने साल तक जीवित रहा, उसके बाद में मर गया, फिर दूसरा मर गया, फिर इस तरह से। And suddenly you get the name of a man called Enoch. और फिर अचानक एक मनुष्य का नाम आता है जिसका नाम है हनोक। In the book of Genesis chapter 5 verse 21 to 24. उत्पत्ति की किताब अध्याय 5 वचन 21 से वचन 24 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। And let me read it for you. Pay a very careful attention to these words. हम पढ़ते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God and then he was no more because God took him away. उत्पत्ति 5 21 से 24। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। And a very important imagery you find here is that this man seemed to have walked with God. यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप देखते हैं कि ये मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ चला। He was the father of Methuselah according to this word. इस वचन के अनुसार वो तो मतुशेलह का पिता था। If you follow the genealogy, he is a great grandfather of Noah. अगर आप इसकी वंशावली को देखें तो आप पाएंगे कि ये तो नूह का पूर्वज था, परदादा था। And his name means surrendered. और इसके नाम का अर्थ होता था समर्पण। And he taught that we should walk with God. और उसने सोचा कि हमें परमेश्वर के साथ में चलना चाहिए। And it's interesting to note that he walked with God 300 years according to this statistic. इस संख्या के अनुसार देखा जाए तो ये दिलचस्प है कि वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला। Well, if you ask me, is he the only one who walked with God? अगर आप मुझसे पूछे क्या यही एक परमेश्वर के साथ चला? I think there are others Bible mentions having walked with God. मैं सोचता
समझता हूँ बाइबल में और भी लोग बताए गए हैं जो परमेश्वर के साथ में चले। We read about Noah in Genesis chapter 6 verse 7, 8, 9. उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 7, 8 और 9 में हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animal, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य के पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। So, what does it mean to walk with God? तो परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या होता है? We can understand it this way, to live very close to Him. हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसके बहुत ही करीबी में रहना, To be with Him always. कि हमेशा उसी के साथ में रहना। To describe it in other terms, to be not separated from Him at all. दूसरे शब्दों में कहे तो कुछ भी हो उससे कभी दूर नहीं जाना, अलग नहीं होना। And the interesting thing Bible talks about is, it is not just Methuselah, Noah. God is interested in people walking with Him. अब देखिए यहाँ पे दिलचस्प बात ये है कि परमेश्वर हनोक और नूह में ही दिलचस्पी नहीं लेते हैं। परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं कि लोग परमेश्वर के साथ में चलें। And God's desire is that it has to happen with all people. Everyone has to walk with Him. और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के साथ में चले। Interestingly, Bible mentions a few people to have walked with God. दिलचस्प बात है कि बाइबल में कुछ लोग बताए गए हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चले। And that's a kind of relationship God had with people. इस तरह का संबंध परमेश्वर ने लोगों से रखा। And in the book of Genesis, after He created Adam and Eve, left them in the Garden of Eden, and Bible says God walked with them in the Garden of Eden. उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर उस वाटिका में उन मनुष्यों के साथ चलते थे। You can imagine how experience would have been. आप कल्पना कर सकते हैं कैसा अनुभव रहा होगा। And two people, just going together, walking here and there, and that's a very good, wonderful experience. जैसे दो लोग एक साथ में चलते हैं, ये तो सच में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा होगा। And here we find Enoch walked with God. That means probably beginning till end, Enoch surrendered his entire life to God. All aspects of his life he gave to God. यहाँ हम देखते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ में चला, शुरू से लेकर अंत तक वो परमेश्वर के साथ में चला, अपने जीवन के सारे पहलुओं को उसने परमेश्वर को सौंप दिया। He knew God fully well, deeply. वो परमेश्वर को पूरी तरह से और बहुत ही गहराई से जानता था। And when you walk with the person for a long time, you get to know that person deeply. जब किसी व्यक्ति के साथ आप काफी समय से चलते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत ही गहराई से जानते हैं। You know their heart. आप उनके हृदय को जानते हैं। Continuous fellowship and relationship is the idea coming out from this walking with God. परमेश्वर के साथ में चलने से यही विचार आता है कि हम उसके साथ निरंतर संबंध में बने रहते हैं। And first of all, I want to say that, as I mentioned earlier, establish this point from the scripture that God desires to walk with us. और जैसे मैंने आपको पहले से बताया है, परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में चलना चाहते हैं, ये उसकी इच्छा है। He called Abraham. उसने अब्राहम को बुलाया। He said, I will take you to the place and you do not know, but I will bless you and I will bless your descendants. उसने कहा, मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जो तू नहीं जानता, मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा। In the book of Genesis chapter 17 verse 1 he says, उत्पत्ति 17:1 में उसने कहा, he reiterates the promise in this way. वो इस तरह से अपनी प्रतिज्ञाओं को बताते हैं। When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty.
walk before me faithfully and be blameless. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इस तरह से उत्पत्ति 17:1 बताता है। So, yeah, God is calling Abraham, you walk before me blameless. परमेश्वर यहाँ अब्राहम को बुलाते हैं कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, Be faithful. तू विश्वास योग्य रहे। So, later on, Abraham was talking to his servant Eliezer when he had to find a partner, life partner for his son Isaac. He is mentioning the same words, very same words that he had been faithfully walking with God. Genesis chapter 24 verse 40. उत्पत्ति अध्याय 24 वचन 40 में हम देखते हैं, जब अब्राहम अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहा था तब उसने अपने दास एलियाजर से कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ। He replied to the question Eliezer asked, and he replied, the Lord before whom I have walked faithfully will send his angel with you and make your journey a success so that you can get a wife for my son from my own clan and from my father's family. एलियाजर को जवाब देते उसने कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वो तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। इस तरह से अब्राहम उससे कहता है। My dear friends, what has to happen in our life is you want God to work through you, but before that we have to start working with God. मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा काम करे, लेकिन उसके पहले हमें परमेश्वर के साथ में चलना होगा। And we should learn to walk with God in faith. हमें विश्वास से परमेश्वर के साथ चलना सीखना होगा। And Bible very clearly talks about the faith that Enoch had. बाइबल हनोक के विश्वास के बारे में बहुत ही स्पष्ट बताती है। Hebrews chapter 11 verse 5 we read that Enoch had such a great faith in God. इब्रानियों 11:5 में पढ़ते हैं कि हनोक के पास में सच में इतना बड़ा विश्वास था। By faith Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away, for before he was taken he was commended as one who pleased God. इब्रानियों 11:5 पढ़ते हैं, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। What a wonderful statement and a compliment certificate the writer of Hebrews gives about Enoch. इब्रानियों का लेखक हनोक के बारे में सच में कितनी अच्छी खबर यहाँ पर बताता है। By faith he did not taste death. विश्वास ही से उसने मृत्यु को न देखा, वो कहता है। That's what will happen to the believers who are alive or who will be alive at the second coming of Jesus Christ. यीशु के दूसरे आगमन के समय जो विश्वासी लोग जीवित रहेंगे उनके साथ ऐसा ही होगा। This is kind of transformed body. और ये जो है ये तो पूरी तरह से बदल गई ऐसी देह होगी। He did not experience the physical death here. उसने यहाँ पर शारीरिक मृत्यु का अनुभव नहीं किया। He was just transformed. God just took his body and transformed his body. परमेश्वर ने उसकी देह को लिया और उसकी देह को पूरी तरह से बदल दिया। And what a great experience because of his faith. और उसके विश्वास के कारण ये कितना महान अनुभव होगा। He walked with God. वो परमेश्वर के साथ साथ चला। My dear friends, I know I desire to walk with God. मेरे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूँ। All those who are listening to this message today, you may think, I want to walk with God. आज ये संदेश सुनने वाले सभी लोग सोच रहे होंगे मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूँ। That's a very good desire. और ये तो बहुत ही अच्छी इच्छा है। That's something God wants from all of us. परमेश्वर यही तो हम सबसे चाहते हैं। But you and I need to have certain qualities. लेकिन आप में और मुझ में ऐसी कुछ विशेषता होनी ही चाहिए। And he expects that from us. और यही तो वो हमसे अपेक्षा करते हैं। What are the qualities? कौन सी विशेषताएं? 3 simple but indispensable qualities. 3 बहुत ही सरल लेकिन ऐसी विशेषता है जो कि बिल्कुल अटल हैं। First of all, humility. सबसे पहले नम्रता या दीनता। That's what God expects from us. परमेश्वर हमसे इसी की अपेक्षा करते हैं। Micah chapter 6 verse 8. मीका अध्याय 6 वचन 8 पढ़ते हैं। He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you?
to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इस तरह ये कहता है। This is what God expects from us, to walk justly and to love Him and to love mercy and to humbly walk with Him. परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, कृपा से प्रीति रखें और उसके सामने हम नम्रता से चलते जाएं। Those who are proud are people who fill themselves with their own greatness and qualities. जो लोग घमंडी होते हैं वो तो अपने आप को अपनी ही महानता और अपनी ही विशेषताओं से बस भरते चले जाते हैं। Those who are humble are people who are filled with God. जो नम्र लोग होते हैं वो तो ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर से भरे होते हैं। Somebody said this way, humility is not thinking low of yourself, but thinking little of yourself. किसी ने इस तरह से कहा कि नम्रता का मतलब ये नहीं कि खुद के बारे में कम समझे, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि खुद के बारे में कम सोचते जाएं। So when we talk about humility, which is a mandatory requirement to walk with God, we say here clearly that I depend on God. I need God. I need His help in my life. जब हम नम्रता में चलने की बात करते हैं जो कि परमेश्वर के साथ चलने में जरूरी है, तो वो ये कहती है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे परमेश्वर के साथ रहना है। And there is one quality that God cannot tolerate in either Israel or any other human being is the pride. और एक बात जो परमेश्वर न तो इसराइलियों में न ही किसी मनुष्य में पसंद करते हैं, वो है घमंड। And Bible in the book of James chapter 4 verse 6 he says, but He gives us more grace. That's why Scripture says God opposes the poor but shows favor to the humble. याकूब 4:6 परमेश्वर तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। Oh, what a great and powerful statement it is. ये कितना महान और सामर्थी वाक्य है। He gives grace to the humble. वो दीनों पर अनुग्रह करता है He opposes the proud. और अभिमानियों का विरोध करता है। And many a times, God changed the entire scenario when working with the people of Israel because He gave this one reason so that you will not boast. और कई बार Against परमेश्वर me. पूरी परिस्थिति को ही बदल देते हैं, और उसने इसराइलियों के साथ में कई बार ऐसा किया ताकि कोई भी किसी भी तरह से घमंड न कर सके। That's why he cut down a lot of people when Gideon was standing to defeat the Midianites. जब गिदोन मिद्यानियों को हराने के लिए जा रहा था तो परमेश्वर ने उसकी सेना को बहुत ही कम कर दिया। Oh, 12,000 gone, 10,000 gone. I have only 300 enough. ओ 12,000 10,000 है, नहीं मेरे लिए तो 300 लोग ही काफी हैं। And that's the kind of God we have. हमारे परमेश्वर ऐसे ही He हैं। does not want us to brag and boast before Him. वो नहीं चाहते हैं कि हम उस परमेश्वर के सामने घमंड करें और किसी तरह से कोई अहंकार दिखाए। My dear friends, if you're someone who is proud and it is difficult to walk with God. मेरे दोस्तों, अगर आप घमंडी व्यक्ति हैं तो परमेश्वर के साथ में चलना मुश्किल होता है, Because pride resists God's direction. क्योंकि जो घमंड है वो परमेश्वर के मार्गदर्शन का इनकार करता है। When you have humility, you humbly walk according to the steps God is showing you. अगर आप में नम्रता है तो परमेश्वर जो आपको कदम दिखाते हैं उसमें आप नम्रता से चलते हैं। I want to read one more verse in connection with that and move on. इसके बारे में एक और वचन पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। Psalms chapter 25 verse 9. भजन 25 वचन 9। It says, He guides the humble in what is right and teaches them His way. वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा, इस तरह कहता है। So, those who are humble, He guides them and He shows them His way. तो जो नम्र है परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें मार्ग दिखाते And हैं। that's why it is possible to walk with Him when you are humble. और इसलिए जब आप नम्र होते हैं तो उसके साथ चलना संभव होता है। And the second important quality for us needed as we walk with God is faithfulness. परमेश्वर के साथ चलने में दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हमें चाहिए और वो है विश्वास योग्यता। And as you observe the passages that we read, particularly two great examples from the Bible. और जैसे हमने वचन भाग पढ़ा, बाइबल के दो महत्वपूर्ण उदाहरण देखे। First of all, Enoch and then secondly Noah. पहले तो हनोक और उसके बाद में नूह को देखा। And in both cases, it is surprising to see this word that
they walked with God faithfully. और दोनों केस में हम देखते हैं कि ये शब्द आया है वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रीति से चले। And Genesis chapter 5 verse 22 to 24, let me read it again. उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 22 से 24 तक फिर पढ़ते हैं। Maybe I will read only 24. चलिए 24 वचन पढ़ते हैं। Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, कुछ बाइबल कहते विश्वास योग्य रीति से, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। That's interesting to note here. He walked faithfully with God. वो परमेश्वर के साथ साथ विश्वास योग्य रीति से चला। What that shows to us is the consistency. यहाँ पर यह हमें निरंतर विश्वास योग्य बने रहने के बारे में बताता है। Every day. हर एक दिन, All through the 300 years. पूरे 300 साल की उम्र तक वो ऐसे ही विश्वास योग्य रीति से चला। So Enoch walked with God faithfully. हनोक परमेश्वर के साथ साथ विश्वास योग्य रीति से चला। My dear friends, if you do not have faith, you cannot walk with God faithfully. मेरे दोस्तों, अगर आप में विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रीति से नहीं चल सकते। You have to believe in God fully. आपको पूरी तरह परमेश्वर पर विश्वास Because करना है, without faith, it is impossible to please God. क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। And that's what God expects from us. हमसे परमेश्वर यही अपेक्षा करते And हैं। every time, God says He will dwell among His people who are faithful. हर समय परमेश्वर कहते हैं जो उसके लोग विश्वास योग्य बने हैं वो उनके साथ में वास करते हैं। And He wants us to be faithful throughout till the end. वो चाहते हैं कि हम अंत तक उसके साथ विश्वास योग्य बने रहें। In the book of Leviticus chapter 26 verses 9 to 12. लय व्यवस्था अध्याय 26 वचन 9 से 12 में हम इस तरह पाते हैं। God said that He will be faithful to His people. परमेश्वर ने कहा कि वो अपने लोगों के साथ विश्वास योग्य रहेंगे। I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers, and I will keep my covenant with you. You will still be eating last year's harvest when you will have to move it out to make room for the new. I will put my dwelling place among you, and I will not abhor you. I will walk among you and be your God, and you will be my people. और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए को रखते भी पुराने को निकालोगे, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवासस्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। इस तरह वचन कहते हैं। I'm going to be faithful to you. My relationship to you will not change because I promised you. मैं तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहूंगा, तुम्हारे साथ मेरा संबंध नहीं बदलेगा क्योंकि मैंने इसके बारे में तुमसे प्रतिज्ञा की है। And I will bless you means I will bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा मतलब तुम्हें आशीष दूंगा। I will give you double harvest means I will do that. मैं तुम्हें दुगनी फसल दूंगा, इसका मतलब मैं तुम्हें दूंगा। His faithfulness always remains in the lives of His people. उसके लोगों के जीवन में उसकी विश्वास योग्यता हमेशा बनी रहती है। Can't He expect the same from us? क्या वो हमसे यही अपेक्षा नहीं करते हैं? That's what He expects from us. वो हमसे यही तो अपेक्षा करते हैं। In the book of Revelation chapter 2 verse 10. प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 10 में हम पाते हैं, Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. But be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. ये वचन कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। And that's a calling He gives to us. Faithfulness till the end. वो हमें यही बुलाहट देते हैं कि अंत तक विश्वास योग्य रहें। And I am sure as Enoch walked with God, as Noah walked with God, and Abraham walked with God, all these great examples we see in the scriptures have all been walking with God faithfully till the end. और मैं निश्चय जानता हूं जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चला, नूह परमेश्वर के साथ चला, अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, ये सब लोग अंत तक परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहें। And the final quality required from us is holiness. और तीसरी विशेषता जिसकी हमसे मांग की गई है वो तो पवित्रता की है। And what this means is to be separated from the world and belong only to God. और इसका यही अर्थ है कि हम संसार से अलग हो जाएं और हम केवल परमेश्वर के ही बने रहें।
It's a quality very well attested in the Bible for Enoch. ये ऐसी विशेषता है जो बाइबल में खास करके हनोक के बारे में बताई गई है। You read about Enoch a little more detailed manner in the book of Jude, chapter 1, verses 8 to 10. और हनोक के बारे में हम विवरण से यहूदा की पत्री अध्याय 1 वचन 8 से 10 में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। 8 to 10, let me read it for you. 8 से 10 चलिए पढ़ते हैं। In the very same way, on the strength of their dreams, these ungodly people pollute their bodies, reject authority, and heap abuse on celestial beings. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, "The Lord rebuke you." Yet these people slander whatever they do not understand, and the very things they do understand by instinct, as irrational animals do, will destroy them. उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको भला बुरा कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। So in 14 and 15, Enoch, it says, the seventh from Adam, prophesied about these people. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy one to judge everyone and to convict all of them, all of the ungodly acts they have committed in their ungodliness, and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against them. वचन 14 से आगे हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरुद्ध में कही है, दोषी ठहराए। So he had a vision, he had a clear picture of what is going to happen to this evil generation. यानी इस दुष्ट पीढ़ी के साथ में क्या होगा इसकी उसने बहुत ही स्पष्ट तस्वीर देखी थी, उसका स्पष्ट प्रकाशन पाया था और वैसी भविष्यवाणी की थी। But we see here he had kept himself holy, departing from those evil things. पर हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने खुद को पवित्र रखा और उन बुरी बातों से वो बचा रहा। That's a calling God gives to us today. आज परमेश्वर हमें यही तो बुलाहट दे रहे हैं। You know, Peter writes in 1 Peter 1:16, "Be holy because I am holy." पहला पत्रस 1:16 में पत्रस लिखकर कहता है, परमेश्वर ने कहा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। And we are called to walk with God. और हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाया गया है। Walk in the Spirit so that we will not gratify our sinful nature. आत्मा में चले ताकि हम पाप में स्वभाव की इच्छाओं को पूरी न कर सकें। Let's commit ourselves to God. आइए हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें। He is willing and they are available to help you. वो तो इच्छा रखते हैं और वो आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध हैं। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number